الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ سے دعا مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو پھر لے آؤ کوئی صورت اس کی مثل اگر تم اور بلا لو اپنے گواہوں کو اگر تم سچی ہو. اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچی ہو. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خوف سے ذرا زیب جاتی یعنی ذرا ہو جاتی. وہ بالکل مٹی کی طرح ہو جاتے. فرمایا اس طرح ہم اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ تفکر کریں غور و فکر کریں. اللہ کا قرآن امت مسلمہ کے پاس بغیر کسی تحریف کے موجود ہے اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اور پھر یہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں دی. ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ ٹھوکریں کھاؤ دھکے کھاؤ. نہیں، ہماری رہنمائی کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب بھی دی، پیغمبر بھی دیا. پیغمبر اس لیے دیا کہ وہ اس کتاب پر عمل کر کے ہمیں دکھائے کہ عمل کس طرح اس کتاب پر کرنا ہے. ایک قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ایک قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں چلتا پھرتا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کو بت پرست معاشرے کو زندہ بیٹیوں کو درگور کرنے والے معاشرے کو عورت کی تذلیل کرنے والے معاشرے کو انسان کو انسان نہ سمجھنے والے معاشرے کو ایسا مقام دیا اس قرآن کی بدولت
ان کو ایسا رنگ لگا کہ وہ اس معاشرے کے ہیرے اور موتی بن گئے اور پھر ستارے بن گئے کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، ایسے روشن ستارے کہ ان میں سے جس کو بھی دیکھ کر صحیح راستے کی طرف چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، کامیابی کا راستہ۔ یہ کتاب انقلاب ہے، کتاب آئین ہے، ہم نے اس کو بنا دیا مردوں کے لیے۔ کوئی فوت ہو گیا، میں 10 پارے پڑھے، میں 20 پارے پڑھے، میں پورا قرآن مجید پڑھے، میں 20 قرآن مجید پڑھے۔ صرف مردوں کے لیے یہ کتاب آئی ہے، زندوں کے لیے اس کا کوئی پیغام نہیں، زندوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب نہیں آئی۔ اصل بات یہ ہے ہم بھول گئے اس کتاب کے آنے کا مقصد، ہم بھول گئے کہ یہ کتاب انقلاب ہے، ہم بھول گئے کہ یہ کتاب آئین ہے، اور اس کتاب کو ہم نے یہی سمجھا کہ اس کی قدر و قیمت اس طرح کریں، اس کی عزت اس طرح کریں، اچھا بہترین قسم کا غلاف ہو، وہ اس پر اس کے ساتھ وہ لیس وغیرہ لگا کر اور چمکیلی لگا کر اس کے اوپر وہ غلاف چڑھا دے، اس کو خوشبوؤں میں بسا دیں، اس کو چومیں، اس کو اونچی جگہ رکھ دیں۔ یہ جنات پکانے کے لیے ہے، یہ گھر کی خیر و برکت کے لیے ہے، یہ گھر کے اندر برکت ہوگی اگر اللہ کا قرآن موجود ہوگا۔ دکان کے اندر رکھ دیں، اس کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہو، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، اس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہو، اس کو کھول کر پڑھنے کی بجائے اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کے بجائے ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت کا راستہ، ہدی للناس ہے، کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ، یہ اس سے حاصل کرنے کی بجائے ہم نے کیا شروع کر دیا؟ اس کو چوم کر اس کو رکھنا شروع کر دیا، یا اس کے ہم نے تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈالنے شروع کر دیے۔ سوچو کوئی آدمی تم کسی آدمی کے پاس جاتے ہو، کسی حکیم کے پاس جاتے ہو، وہ تمہیں کوئی نسخہ لکھ کر دیتا ہے، نسخہ لکھ کر وہ دیتا ہے، تو وہ نسخہ لے کر تم اس کو کسی چمڑے کے اندر بند کر کے گلے میں ڈال دیتے ہو، تو اس سے تم کو شفا ہو جائے گی؟ کبھی شفا نہیں ہوگی۔ نسخہ تو قیمت لکھ کر دے دیا، اب جا کر پنساری کی دکان سے وہ چیزیں حاصل کرو جو اس نے لکھ کر دی ہیں، پھر اس کے طریقے کے مطابق دوائی تیار کرو، پھر وہ دوائی استعمال کرو تو پھر فائدہ ہوگا۔ تو یہ نسخہ کیمیا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اب اس نسخے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہی شرم نہیں کرتے اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ ہم یہی نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے اس کو اس کام کے لیے استعمال کریں، یا مردوں کے پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے ثواب پہنچتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، ثواب پہنچتا ہے، لیکن صرف اس کو اسی کام کے لیے مختص کر دینا، اسی کام کے لیے صرف رکھ دینا کہ یہ اسی کام کے لیے ہے، اب اس سے کچھ اور اثر نہیں کرنا، یا اس کی تعویذ بنا کر ہم نے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے کہ اس سے ہمیں برکت ہوگی، صحت ہوگی، شفا ہوگی، تندرستی ہوگی، بات ٹھیک ہے، نہ اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ویسے پڑھنا گناہ نہیں ہے، وہ بھی بڑا ثواب ہے، کوئی نہیں کہتا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے، فرمایا الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، اس آدمی کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تینوں کی اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تو الف لام میم پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اب سمجھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک آیت قرآن مجید کی سمجھ کر پڑھتا ہے، غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، فرمایا ایک آیت جو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو 700 رکعت نماز نفل کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی حدیث میں فرمایا کہ پھر اس کو 700 آیات بغیر ترجمہ کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بغیر سمجھے کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 700 آیات ایک آیت کو سمجھنے کے بدلے، تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ تو میں ثواب کی بات کر رہا ہوں، ثواب ہے۔ اب اس طرف ہم آتے ہیں کہ ہم اس کو عملی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ ہر آدمی میرے سمیت سب، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا، آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، ہم سب اس کو اپنی عملی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟
इसने हमें कितने अहकाम दिए हैं, उन अहकाम को हम क्यों नहीं समझने की फिक्र और कोशिश करते और उन पर अमल की फिक्र और कोशिश नहीं करते। कुरान को पढ़ते हैं लेकिन इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इसको मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, चूमते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसकी कोई बात हम मानने के लिए तैयार नहीं मानते। चंद बातें मानते हैं, वो भी जो सिर्फ मजहब के हद तक ताल्लुक रखती हैं, वो सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह इतनी सी बातें मान लेते हैं। और जो एक पूरा निजाम इसने हमें दिया है, क्योंकि अल्लाह की किताब है। एक आदमी का कोई गाड़ी लेकर आता है ना, या कोई वॉशिंग मशीन लेकर आता है, कोई पंखा लेकर आता है, तो उसके साथ वो किताबचा साथ देते हैं अदायात के लिए कि इसको पढ़कर इसको इस्तेमाल करें, ताकि इस्तेमाल करने वाला इसको गलत ना इस्तेमाल करे। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये किताब भेजी कि तुमने इसके मुताबिक अपने आप को इस्तेमाल करना है। मशीन को तो इस्तेमाल करते हैं उस डायरी के मुताबिक जो मिलती है, ये डायरी जो किताब जो है ये तुम्हारे लिए है। अपने आप को तुमने इसके मुताबिक इस्तेमाल करना है तो कामयाब हो जाओगे। इसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो मर जाओगे, नाकाम हो जाओगे, जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदउ बिआख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत सी कौमों को उठाता है और बहुत सी कौमों को गिरा देता है। कौमों के अरूज व ज़वाल की दास्तान इस किताब के साथ वाबस्ता है। इस किताब के साथ जो शिरक करेगी वही शर्माना होगा। आज क्यों मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं? इस किताब के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, इस किताब को अल्लाह की किताब उस तरह नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, नहीं इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे, इसके नफाज की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए मुसलमान दुनिया में ठोकरें खा रहे हैं। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। हम इसीलिए खार हो रहे हैं। सबसे बुनियादी वजह ये है। अल्लाह ने तौरात वालों की भी ये बात फरमाई थी कि वलौ अन्ना मकाम तौरात वल इंजीला लअक़लू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर वो तौरात और इंजील को कायम करते तो आसमान भी उन पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता, आसमान से भी रिज़्क़ बरसता, जमीन भी उनके लिए रिज़्क़ उगलती। अगर हम भी इस कुरान को कायम कर दें, कायम करना क्या है? तिलावत करना। तिलावत करना अलग बात है, समझना नहीं, समझना भी नहीं। इसके क़वानीन को जारी करना, ये उस जगह हो जहां पर चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं, वहां पर कुरान मजीद भी पास होना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास ऐसे कुरान पढ़ा हुआ हो, कोई फैसला करे, अल्लाह के कुरान को खोल कर देखे कि अल्लाह के कुरान ने इस मुकदमे के मुतालिक क्या फैसला दिया है। उसको देखकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को देखकर, जैसे काजी कोर्टें होती हैं, उसको देखकर फैसला करे चीफ जस्टिस। देखो बेचारों को तो कुल वहाद भी नहीं आती, कुरान भी नहीं पढ़े होते, कुरान से कोरे अंधे बहरे लोग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जिनको कुरान भी नहीं आता और सूरह इखलास तक भी नहीं आती। आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरह करके लोग, ऐसे लोग इस माशरे पर जब मुसल्लत हो तो फिर अल्लाह के कुरान को जब सिर्फ तिलावत के लिए रख लिया जाए, इसके क़वानीन भी ना जारी हो सारी हो, अपनी जिंदगी भी इसके खिलाफ गुजर रही हो, माशरे की भी दुरुस्ती की बात ना की जाए, कुरान के नफाज की भी बात ना की जाए, इसको सिर्फ तिलावत करके रख दिया जाए, ना इसको समझा जाए, ना इस पर तरीके जिंदगी गुजारने की कोशिश की जाए, तो फिर ज़वाल नहीं आएगा तो और क्या होगा? फिर आप जलील ना होंगे तो क्या होगा? अल्लाह का कुरान मौजूद हो उम्मत मुसलमा के दरमियान और उम्मत मुसलमा फिर भी ठोकरें खाई जा रही हो, कुफार के पाए हकारत के नीचे ठोकरें खा रही हो, कुफार के आगे सजदा रेज हो, तो फिर समझना चाहिए कि कोई वजह जरूर है। वजह क्या है? हम क्यों जलील हो रहे हैं, हम क्यों रुसवा हो रहे हैं? हमारा ताल्लुक इस किताब के साथ किस हद तक है? सिर्फ तिलावत की हद तक है, तिलावत की हद तक है? अमली जिंदगी हमारी कैसी है? हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है, कुरान पढ़कर सवाब हासिल कर लो, बस ठीक है, बाकी अमली जिंदगी जो अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारो। अपनी मर्जी फिर नहीं करनी। जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हुक्म का फैसला कर दें, कोई हुक्म दे दें, फिर उसके खिलाफ अपनी मर्जी करना मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान के मैंने क्या है? फरमाबरदार। मुसलमान कहते हैं फरमाबरदार को। किसका फरमाबरदार? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार। आप जो फरमाबरदार ना हो, हुक्म ना माने, उसको खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेबल तो मेरे पर मुसलमानी का लगा हुआ है, लेकिन मेरे करतूत कैसे हैं? आज इस माशरे के अंदर आप खुद हिसाब लगाए, खुद आप देखें कि क्या हमारी जिंदगियां इस कुरान के खिलाफ नहीं गुजर रही? क्या आप इसी वजह से जलील नहीं हो रहे? और फिर गर तुम इखवाई मुसलमान जेस्ता,
अगर तू चाहता है कि तू मुसलमान बनकर रहे, नेस्त मुमकिन जुज़्बे कुरान ज़िस्तम, तो कुरान के बगैर मुसलमान बनकर रहना बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरह कुरान के बगैर मुसलमान बनकर रहना नामुमकिन है, बिल्कुल ये ऐसी मिसाल है कि जिस तरह कोई आदमी के मछली जो दरिया के बगैर नहीं रह सकती, मुसलमान को कुरान मजीद के साथ ऐसा ही ताल्लुक है, अल्लाह के कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक है। इस माशरे के अंदर बेशुमार लोग हैं जो कुरान मजीद नाज़रा भी नहीं पढ़े हुए, बेशुमार लोग हैं बल्कि आटे में नमक के बराबर हैं जो इस कुरान मजीद को समझते हैं कि इसमें अल्लाह के अहकाम क्या हैं। लाजमी बात है, अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, हमें सोचना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने हलाल क्या फरमाया है, हराम क्या फरमाया है, हक क्या फरमाया है, बातिल क्या फरमाया है, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। एक रास्ता अगर हमने कोई मुतय्यन करना है अपने लिए तो कुरान हमें क्या रास्ता बताता है, उसको देखने की जरूरत है या नहीं है। अल्लाह ने इसको दलीनास फरमाया है, ये सारी कायनात के इंसानों के लिए हिदायत है। अब इंसान अगर हिदायत हासिल ना करे तो फिर खुद उनका अपना कसूर है ना। अल्लाह या युन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ दुनिया के इंसानों आगे तुम्हारे पास नसीहत मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फी सुदूर, और तुम्हारे दिलों की बीमारियों का इलाज, तुम्हारे सीनों की बीमारियों का इलाज। ये सीनों की बीमारियों का इलाज और दिलों की बीमारियों का इलाज क्या है? आटे का इलाज है? नहीं, ये इलाज है तुम्हारे दिलों के अंदर जो कुदरतें हैं, तुम्हारे दिलों के अंदर जो निफाक है, तुम्हारे दिलों के अंदर जो झूठ है, दिलों के अंदर जो ग़ीबत है, जो तरह तरह का बुग़्ज़ और कीना है, उस सब की ये सफाई कर देने के लिए अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ है कि इंसान के दिल को भी साफ कर दे। उसके लिए मौइज़त भी है, नसीहत भी है, दिलों की बीमारियों का भी इलाज है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, वो अगर सही रहे तो सारा जिस्म ठीक रहता है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तिब्बी तौर पर भी दिल को मरकजी हैसियत हासिल है। दिल अगर चलता रहे, काम करता रहे, आदमी ठीक रहता है। डॉक्टर भी दिल को ही देखते हैं और चेक करते हैं कि इसका दिल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये काम करना छोड़ दे, खत्म, कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। यही काम है इस दिल का रूहानी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी, ये दिल मरकज है। इस दिल के अंदर नेकियां परोस पाए, अच्छाइयां परोस पाए तो ये इंसान की ईमानी सेहत के लिए, रूहानी सेहत के लिए जरूरी है। और अगर इस दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, कीना हो, तकब्बुर हो, गरूर हो, ग़ीबत हो, चुगली हो, कीना गिफ्ट हो, बुराइयां हो, तो फिर ये दिल जो है ये इंसान की ईमान और उसकी रूहानियत के लिए मौत का सबब है। उस पर खत्म हो जाता है आदमी ईमानी लिहाज से, कि उसके दिल का मरकज और मबा। फिर दिल वो जगह है जो अल्लाह के गुजरने की जगह है, अल्लाह के गुजरने की जगह। किसी आदमी के गुजरने की कोई जगह हो ना, लोग उसको साफ करते हैं, फलाना अफसर आ रहे हैं, फलाना बादशाह आ रहे हैं, तो दिल किसकी जगह है? गुजरगाह रब्बे जलील। इसलिए इसको भी किना गिफ्ट से, गिबत से, इन बीमारियों से साफ रखना चाहिए। लेकिन कुरान इस चीज की भी दावत देता है कि ये शिफाउल लिमा फी सुदूर भी है, बीमारियों, दिलों की बीमारियों को दूर करने वाला भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने ये कुरान नाज़िल किया है, इसमें शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। शिफा भी है, रहमत भी है। पढ़कर इसको दम करना मना नहीं है। बात तो इसलिए हम कर रहे हैं ना कि इसको अपनी जिंदगी का रास्ता मुतय्यन करने के लिए भी इसको सामने रखना चाहिए, लेकिन इसको पढ़कर भी दम किया जा सकता है। इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कुल और इसे करके सूरह फातिहा मुख्तलिफ बीमारियों के वाक़े पर पढ़कर आप ससम फूंकते रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने इसको एक मखसूस दायरे के अंदर रख दिया है कि यही काम है सिर्फ कुरान के, बाकी काम कुरान के नहीं है। अल्लाह ने कुरान जो नाज़िल किया है, कुरान के नाज़िल करने वाले ने ये बात फरमाई है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है उन मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युक़ीमूना अस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं।
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, इससे पहली किताबों पर भी ईमान रखते हैं। वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो यकीन रखने वाले हैं। ये सिफात इन लोगों के अंदर होंगी। इन सिफात के हामी लोग जो हैं उनके लिए ये किताब हिदायत के दरवाजे खोल देती है, हिदायत के दरवाजे उनके लिए खुलते जाते हैं। और फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, जिन लोगों के अंदर ये सिफात हैं ये लोग हिदायत पर है अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक के लिए ये चीजें जरूरी हैं, जो चीजें अल्लाह ने कुरान में फरमाई हैं, शुरू के रुकू में जो बातें फरमाई हैं ये जरूरी हैं। ये अगर चीजें हासिल करेगा, इन चीजों पर अमल करने की कोशिश करेगा, नमाज की पाबंदी, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, ईमान बिल गैब और अल्लाह की पहली किताबों पर ईमान, इस कुरान पर पुख्ता ईमान, आखिरत पर पुख्ता ईमान, रसूलों पर पुख्ता ईमान, और फिर इसके बाद ये चीजें सारी इख्तियार करने के बाद क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? ये लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। इसलिए इस कुरान के साथ हमारा जो ताल्लुक है उसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुरान अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पर एहसान है जो उसने हमें ये कुरान दिया है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसकी कदर करने का सही तरीका ये है कि हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक देगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको कहेंगे कि इसका काम तो सिर्फ ये है कि जब हमारा कोई फौत हो गया सारे 30 इकट्ठे करके ले आओ, उनको पढ़कर उसको बख्श दो, बस ठीक है, ये काम है। या इसको तिलावत करके इसको चूम कर इसको रख दो, बस इसका इतना ही काम है, बस ठीक है। अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको वो मुकाम देने की कोशिश नहीं करेंगे जो इसका मुकाम है, तो फिर हमें अल्लाह ताला भी वो मुकाम नहीं देगा जो मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी अफजल उम्मत करार दिया है। ये चीजें बड़ी जरूरी है समझने की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया के सरदार हैं, और ये किताब सारी किताबों की सरदार है। अल्लाह की किताब है। जिस तरह अल्लाह सारी मखलूक का खुदा है, अल्लाह को जो मुकाम है सारी मखलूक के ऊपर, दुनिया की सारी किताबों के ऊपर, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, उन सब किताबों के ऊपर भी इस किताब को वही मुकाम हासिल है जो अल्लाह को अपनी मखलूक के ऊपर मुकाम हासिल है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। ये खालिकी कुरान का, खालिकी कायनात का कुरान है, ये उसका कलाम है। तो इसको ये वो मुकाम हासिल है, इसको हमें चाहिए कि वही मुकाम दे जो इसका मुकाम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के साथ मुज़य्यन करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़िअ दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।